Abhishek Shirle. I have completed my BTech and MTech from Walchand College of Engineering, Sangli. This channel is all about environmental engineering, and most of the videos will be based on the SPPU syllabus of environmental engineering too. So let's start with our first topic, that is collection and conveyance of sewage and sewerage system. Then the content of the topic is first into we will see introduction, then conservancy system, that is also called as dry system, then water carriage system, sewerage system, then the types of the sewerage system. So first we will see the introductory part. Uh, that is before going for the environmental engineering too, we should know what is wastewater. Wastewater is nothing but the used water, that water we used in our daily life. That is the water when used for different purpose like domestic, commercial, industrial, etc, receives impurities and becomes wastewater. Thus, wastewater is used water and it has physical, chemical, biological impurities in it. Physical impurities means just like clay, sand particles, that is physical impurities, and the chemical impurities, that is the dissolved impurities, chemicals. Then biological impurities such as the microorganisms, viruses, bacteria, all living things, that is nothing but your biological impurities in the wastewater. Okay, you can see here the pictures of the wastewater. Then the question arises is wastewater is a burden or resources? Someone say it is a burden, someone will say it is a resource. So according to me, it is a burden also and it is a resource. Burden if the wastewater is not treated and directly dispose it into the water bodies. That is अगर अगर गलती से अपन ने क्या किया, अगर वेस्ट वाटर को ट्रीट नहीं किया, वेस्ट वाटर ट्रीट ना करके डायरेक्टली अपन ने रिवर में अगर डिस्पोज करें, तो उससे क्या होगा कि जो कुछ भी वेस्ट वाटर है वो वेस्ट वाटर से रिवर पोल्यूट हो जाएंगे, रिवर पोल्यूट होने से रिवर में की जो डिजोल्व ऑक्सीजन की लेवल है वो कम होगी, उससे उस वजह से जो कुछ भी एक्वेटिक लाइफ पे हम पड़ेंगे, यानी जो कुछ भी इकोसिस्टम जो कुछ भी है वो इकोसिस्टम डिस्टर्ब होंगे, यानी एनवायरमेंट पे इफेक्ट करेंगे, इसलिए बर्डन। अब रिसोर्सेज कैसे बोल सकते हैं अपन, अब देखा जाए वैसे तो वेस्ट वाटर में 90 to 95% वाटर रहता है और बाकी का जो रहता है वो वेस्ट रहता है। तो इसलिए अगर अपन ने उस वेस्ट वाटर को ट्रीट करके उसमें से उसके इम्प्योरिटीज कैरेक्टरिस्टिक्स कम कर दिया और वो वेस्ट वाटर को अगर यूज करना चाहे तो वो एज ए रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, क्योंकि अब देखा जाए तो अपने अर्थ में जो कि फ्रेश वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। इसीलिए हमें यह क्वेश्चन को वेस्ट वाटर इज अ बर्डन और रिसोर्स को एज अ बर्डन ना कंसिडर करते हुए रिसोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके वाटर का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होने वाला है। इसलिए ये क्वेश्चन को एज अ रिसर्च, वेस्ट वाटर को अपने को एज ए रिसोर्स ट्रीट करना पड़ेगा। और बहुत सारे जो क्या बोल सकते हैं रिसर्च वर्क जो अभी वेस्ट वाटर पे चल रहे हैं कि जो वेस्ट वाटर है वो अच्छे से ट्रीट करके अपन रीयूज कर सकें। Then sewage. Let's see some different types of wastewater. I will say you. I say you. The wastewater is a general term. Okay, wastewater is a general term. Anything, any water which was used is called as wastewater. There are different types of wastewater. Okay, let's see. Sewage. What is sewage? The water coming from bathroom and kitchen which does not contain fecal matter. Fecal matter means our human excreta or the waste which is generating from the WC. Okay, is known as sewage. Then sewage, the wastewater coming from the human activity from household is known as sewage. It contains sewage discharge from latrine, urinals, industrial waste, and also the storm. Sewage is different, domestic sewage is different. Okay, in sewage you can see sewage also, discharge from latrine, that is from WC also, then urinals, then industrial waste and storm. Storm water means rainfall water or the water which is runoff. Then domestic sewage. Domestic sewage, it is the sewage obtained from the lavatory basin, urinals, WC of residential building, office building, theater, and other institute. Here the term is domestic sewage.
and the about term is sewage. Okay, in the sewage there is a industry, there is a mixing of industrial waste, but in domestic sewage there is no mixing of industrial waste. That's why it is called as domestic waste. Domestic waste contains the whole waste which is coming from lavatory basin, urinals, water closet of residential building, office building, theaters, and other institutions such as school, colleges, hostel, etc. Okay. Then let's see another. Then sewer. Sewer means you may have heard this word many times. Sewer, a pipe carrying sewage or wastewater is nothing called sewer. यानी कि जो पाइप में से वेस्ट वाटर जाएगा या बहेगा उसको अपन सीवर बोलेंगे, जैसे कि अपन नाला बोलते हैं उसको, वो नाले की जो पाइप बोलते हैं वो. Then night soil. Night soil is a human or animal excreta. ह्यूमन मेटाबॉलिज्म के बाद जो कुछ भी बाय प्रोडक्ट बाहर आता है उसको ह्यूमन उसको नाइट सॉइल बोलते हैं, दैट इज ह्यूमन और एनिमल एक्सक्रीटा. देन सॉइल पाइप. सॉइल पाइप इज अ पाइप कैरिंग सीवेज फ्रॉम डब्ल्यूसी. ओके, वाटर क्लोजेट में से जो कुछ भी वेस्ट आएगा वो जो जिस पाइप में से जाएगा वो उस पाइप को अपन सॉइल पाइप बोलेंगे. Then waste pipe, or it is also called as drained pipe. It is a pipe carrying sewage from bathrooms, kitchens, sink, wash basin, etc. Okay. Then let's see in detail collection and conveyance of sewage. The two system of collection, conveyance, and disposal of wastewater. First is the drag system or conservancy system, and the second is the water carriage system. Okay. What is conservancy system? First we will see, and it is also called as dry system. In this system, waste such as night soil, garbage, sewage, and stormwater are collected separately in vessel or deposited in pools or pit and then removed periodically at least once in a 24 day. जो कुछ भी कंजर्वेंसी सिस्टम में होता है, ये नाइट सॉइल हो गया, गार्बेज हो गया, स्टॉर्म वाटर हो गया, ये अलग से कलेक्ट किया जाता है. एक ही कंटेनर में या फिर एक ही सीवर में ऐसा नहीं होता है, ये अलग कलेक्ट किया जाता है और अलग ही अपने को उसको पीरियडिकली रिमूव करना पड़ता है. ओके. देन various types of refuse and storm water are collected and conveyed, disposed of separately by different methods in this system. ये जैसे अभी बताया मैंने आपको कि various type of refuse यानी solid waste जैसा जो कुछ भी और storm water ये अलग से कलेक्ट किया जाता है, अलग से उसके लिए मैकेनिज्म अलग से कलेक्ट करके अलग से डिस्पोज किया जाता है. देयरफॉर ये जो कुछ भी सब अलग से रहने के लिए इसीलिए इसे इट इज कॉल्ड एज कंजर्वेंसी सिस्टम. देन this point is important. The next 2 points are important. All the non-combustible portion of the garbage is comes under solid waste. Oh, okay. All the non-combustible portion of the garbage such as sand, dust, clay ashes, etc. Are used for filling the low-level areas to reclaim land for further development of the town. जैसे नॉन कम्बस्टिबल पोर्शन होगा जैसे सैंड, डस्ट, क्ले, ये सब कुछ तो जहाँ पे जहाँ लो लाइंग एरिया या फिर जहाँ एक्सकेवेशन किया गया उसको एक पर्टिकुलर अच्छी लेवल पे लाने के लिए क्या किया जाता है, जो कुछ भी वेस्ट है वो वेस्ट को वहाँ डंप किया जाता है, फिर बाद में उस पर कॉम्पैक्टिंग वगैरह बाकी की जो कुछ भी उनका प्रोसेस किए जाती है फिर उसको फर्दर डेवलपमेंट के लिए यूज कर सके. इस टाइप में उसका जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट का जो कुछ भी या गार्बेज का जो कुछ भी डिस्पोजल किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है the combustible portion of the garbage such as dry leaves, waste paper, broken furniture are burned because they are combustible, that's why it is burned or incinerated. Then the decaying fruit and vegetable, grass and other things are first dead and then disposed of by burning. एक तो उनको जला दिया जाता है या फिर और in the manufacturing of manure, because all these things fruit, vegetable, grass are all are organic matter and organic matter is a good source for manure. That's why it can be used for the manufacturing of manure. Then disposal methods for the various types of waste. Okay, first see night soil. नाइट सॉइल का डिस्पोजल कैसे करते हैं तो देखते हैं. नाइट सॉइल और ह्यूमन एक्सक्रीटा इन लैट्रिन्स इज कलेक्टेड इन पैन्स एंड कैरिड आउट ऑन अ हेड ऑफ स्वीपर to the central place, and then this waste is transported in bullock cart or motor van to place away from the city. जो कुछ भी सॉइल है नाइट सॉइल रहेंगे वो नाइट सॉइल को क्या किया जाता है, लोगों के जो कुछ भी लेबर है वो लेबर के सर के ऊपर रख के
एक पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट पे प्लेस किया जाता है। पर्टिकुलर सेंट्रल पॉइंट पे प्लेस करने के बाद वहां से एक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल आती है, वो व्हीकल वो पूरा वेस्ट कलेक्ट करते हैं, फिर बाद में जहाँ पर भी डिस्पोजल पॉइंट है वहां डिस्पोजल पॉइंट में क्या करते हैं, प्लेस कर देते हैं। देन गार्बेज garbage that is solid waste. Garbage is collected separately in dustbins and conveyed on the hand carts or motor van once or twice a day. जैसे कि आपने देखा ही होगा, जैसे विलेजेस में, रूरल एरियाज में कैसा होता है कि जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट है, घर से जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है, गार्बेज जो कुछ भी जनरेट होता है, वो जनरेट के बाद एक आधे प्लेस पे थ्रो किया जाता है, डिस्पोज किया जाता है। फिर बाद में जो कुछ भी गवर्नमेंट एजेंसी है, जो कुछ भी लेबर है, वो लेबर आते हैं कार्ट में, वो सब के सब सॉलिड वेस्ट जो कुछ भी गार्बेज वो भरते हैं, फिर बाद में लेके चल जाते हैं, जहाँ पे डिस्पोज करना वहाँ डिस्पोज करते हैं। तो सेम वैसा ही ये सिस्टम में किया जाता है। एक्चुअली वो सिस्टम वही है। गार्बेज डिस्पोजल डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ वेस्ट दैट इज कंबस्टिबल एज वेल एज नॉन कंबस्टिबल। जैसे तो पिछले स्लाइड में अपन ने देखा कि जो कुछ भी गार्बेज का डिस्पोजल है वो डिपेंड करता है कंबस्टिबल है कि नॉन कंबस्टिबल। अगर कंबस्टिबल है तो उसे कंबशन फ्यूल के जैसा ट्रीट करके फायर पर्पज में या कुकिंग में यूज किया जा सकता है। या फिर अगर नॉन कंबस्टिबल है तो नॉन कंबस्टिबल को तो अपन को एक तो डिस्पोज करना पड़ेगा, या फिर उसका बाय प्रोडक्ट या फिर रीयूज करना पड़ेगा। मेथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल आर ओपन डम्प्स, हॉग फीडिंग, इंसिनरेटर, सैनिटरी लैंडफिल एंड बायोलॉजिकल एक्शन। ओके, जो कुछ भी गार्बेज डिस्पोजल की मेथड है वो है ओपन डंपिंग, जैसे कि एक आधे एरिया में, लो लाइंग एरिया में ओपनली डंप कर दिया। हॉग फीडिंग यानी कोई भी जो कुछ भी इंसेक्ट है जो दोनों चीज पे डिपेंड करती है, ह्यूमन बींग्स पे भी, दैट मींस vegetation as well as or animals as well as. Then incinerators, then sanitary landfill, then biological digestion. Incinerators तो तुम्हें पता ही है, sanitary landfill को engineered landfill भी बोलते हैं, यानी कि प्रॉपर एक्सकेवेशन करके जो कुछ भी सैनिटरी लैंडफिल में प्रॉपर एक्सकेवेशन किया जाता है। प्रॉपर एक्सकेवेशन के बाद उस पे पूरे लाइनर प्रोवाइड की जाती है, यानी कि जो कुछ भी है वेस्ट होना, लिक्विड वेस्ट वो ग्राउंड में पर्कुलेट ना हो, इसीलिए लाइनर प्रोवाइड की जाती है। फिर उसके बाद में तो पूरा की पूरा जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट है वो डंप किया जाता है। फिर हमें सॉलिड वेस्ट डंप करने के बाद उसको प्रॉपरली ऊपर से कवर किया जा सकता है। उससे क्या होता है कि जो कुछ भी एनवायरनमेंट पे जो कुछ भी इम्पैक्ट है उस चीज का, वो इम्पैक्ट कम हो। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, उसका इम्पैक्ट होगा, उतने डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, तो वो इम्पैक्ट कम हो, इसलिए वो सैनिटरी लैंडफिल है। देन बायोलॉजिकल डाइजेशन, जैसे कि मैन्योर, ओके, डाइजेशन, या फिर एनारोबिक डाइजेशन में मीथेन जनरेशन में अपन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसलिए बायोलॉजिकल डाइजेशन भी एक ऑप्शन है। Then sewage and storm water. Then sewage and storm water are collected and conveyed in closed or open gutter up to the point of disposal and dispose of into water bodies without treatment. अब जैसे कि सलेज देखा जाए एंड स्टॉर्म वाटर देखा है, कन्वर्ट क्लोज ओपन गटर, क्लोज या फिर ओपन गटर में प्लेस किया था, जैसे कि अपन ने विलेजेस में देखा गया। विलेजेस में कैसा हर बार अभी थोड़ा डेवलप हो रहा है, इसलिए अभी तुम्हें क्लोज सीवर्स दिखेंगे या क्लोज गटर्स दिखेंगे, लेकिन पहले कैसा था कि सब कुछ गटर्स जो रहते हैं ओपन रहते, उसमें से वेस्ट वाटर क्या रहता था, वेस्ट वाटर या सलेज एंड स्टॉर्म वाटर क्या रहता है उसी में से आता था, डायरेक्टली क्या जाता होता था गाँव में। तो ट्रीटमेंट फैसिलिटी तो नहीं रहती, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट फैसिलिटी, तो वो डायरेक्टली वेस्ट किया जाता है बिना किसी ट्रीटमेंट के, रिवर में आके डिस्पोज हो जाता है। देन कंजर्वेंसी सिस्टम एडवांटेजेस, फर्स्ट एडवांटेज इज हाइजीन, फर्स्ट डिसएडवांटेज इज हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट। अब हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो the conservancy system is a highly unhygienic and cause insanitary condition, and since the excreta start decomposing within few days, कुछ कम समय में जो कुछ भी एक्सक्रीटा या जो कुछ भी वेस्ट है वो डिकम्पोज होना चालू हो जाता है। अब फिर अगर आपने क्लीनिंग रेगुलर भी किया फिर भी जो कुछ भी डिकम्पोजिशन वो स्टार्ट हो जाएगा और उससे फॉल स्मेल होने के चांसेस है, या फिर जो कुछ भी एनवायरमेंट जो कुछ भी एयर पोल्यूशन होने के भी चांसेस है। Then second point is transportation aspect. Okay, transportation of night soil takes place in open carts through streets and other crowded localities. Okay, जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है नाइट सोइल का
वो ओपन कार्ड्स के थ्रू लिया जाता है। जो कुछ ओपन फिर से अगर ओपन में से लेके जा रहे हैं तो फिर न्यूसेंस का, फॉल्स मेल का, ऑर्डर का, ये सब जो है वो प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज है। देन लेबर एस्पेक्ट, जो कुछ भी इसका ये पूरी सिस्टम काय पर डिपेंड है, ये पूरी सिस्टम लेबर पर डिपेंड है। अब अगर लेबर मिलेंगे तो ही सिस्टम वर्क होंगे, नहीं तो नहीं। क्योंकि जो कुछ भी वेस्ट जनरेट हो रहा है घर में, वो सब का सब वेस्ट क्या किया जाता है, पूरा वेस्ट कलेक्ट मैन्युअली क्या करता है, वो वहां से निकाल के एक पर्टिकुलर सेंटर पॉइंट में प्लेस करते हैं। सेंटर पॉइंट में एक व्हीकल आती है, फिर व्हीकल वो दूसरा ले आती है, यानी वो यहाँ पे पूरा इन्वॉल्वमेंट का है, मैन पावर का इन्वायरमेंट है, लेबर के। तो इसीलिए ऐसे अभी फिलहाल की अभी प्रेजेंट कंडीशन में अगर देखा जाए तो ऐसे लेबर मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए ये जो कुछ भी प्रॉब्लम है बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लेबर एस्पेक्ट का। और फिर अगर गलती से भी अगर लेबर साइड स्ट्राइक पे चले गए, या फिर उन्होंने काम छोड़ दिया, एक दिन के लिए भी अगर काम छोड़ दिया, तो पूरा एनवायरमेंट, पूरा सोसाइटी, पूरा जो कुछ भी वो उतना एरर रहेंगे पूरा बहुत सफर करेंगे। इसीलिए ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है मेरे हिसाब से। ओके, देन बिल्डिंग डिजाइन एस्पेक्ट। अब बिल्डिंग डिजाइन एस्पेक्ट में इसमें कैसा है, अभी जैसे बताया कि जो कुछ भी वेस्ट है वो वेस्ट क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। कौन मैन्युअली कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करके फिर दूसरे पॉइंट पे प्लेस किया जाता है। अब अगर वो वेस्ट को वहां से ना निकाला जाए तो वहीं रहेगा और वहीं खराब होगा और वहाँ का एनवायरमेंट खराब करेंगे। अब बिल्डिंग डिजाइन एस्पेक्ट के बारे में अगर देखा जाए, अगर अभी अभी के फिलहाल के कंडीशन में देखो अपन, तो जो कुछ भी अभी हाउसेस जो प्लान किए हुए, डिजाइन किए हुए, उसमें क्या सारा टॉयलेट बाथरूम घर में ही रहता है, अटैच रहता है, तो डिफिकल्टी हो जाती है कि वेस्ट कलेक्ट करना। लेकिन अभी वैसा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इतना डेवलपमेंट हुआ है। पहले कैसा था, पहले जो कुछ भी था ये सब पॉसिबल था, क्योंकि पहले लोग क्या करते थे, उनका घर बनाते थे, घर से थोड़ा दूर में क्या करते थे, डब्ल्यूसी बाथरूम बनाते थे। बराबर है, गांव में, विलेजेस में तुमने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो उस वजह से क्या होता था कि जो कुछ भी है, लेबर वगैरह जो वो वहां जाते थे, वेस्ट कलेक्ट करते थे, और वेस्ट कलेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्पोज करते थे। तो इससे क्या होता था कि जो कुछ भी हाउस का या होम का जो कुछ भी एनवायरमेंट है वो डिस्टर्ब नहीं होता था, क्योंकि दूर जो कुछ भी अपना डब्ल्यूसी बाथरूम है, वो डब्ल्यूसी बाथरूम घर से थोड़ा सा दूर होने की वजह से जो कुछ भी ओडर एंड स्मेल का प्रॉब्लम वो कम हो जाएंगे, या फिर नहीं भी रह सकता। इसलिए बिल्डिंग का जो कुछ डिजाइन है वो डिजाइन इस तरह करना चाहिए कि जो अपना लिविंग एरिया, वो लिविंग एरिया से अपने को डब्ल्यूसी बाथरूम थोड़ा दूर बनाना पड़ेगा। देन कंडीशन ऑफ ड्रेन, कंडीशन ऑफ ड्रेन में जैसे इन सैनिटेशन में बी देयर ड्यू टू द कैरेज ऑफ सलेज थ्रू ओपन ड्रेन्स लेड इन द स्ट्रीम। इन सैनिटेशन कंडीशन डेवलप होंगी, जैसे कि अगर ओपन ही रहा तो फिर उसमें मॉस्किटोज ब्रीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर स्मेल ऑर्डर का ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कंडीशन ऑफ ड्रेन इंपॉर्टेंट है कि किस हिसाब से बनाई जाए। देन ह्यूमन एस्पेक्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट में it is highly humiliating to ask human beings to transport night soil on their heads। बराबर, कि अभी के प्रेजेंट कंडीशन में अगर आपने किसी को बोला कि नाइट सॉइल या फिर डब्ल्यूसी की वेस्ट है वो एक कंटेनर में कलेक्ट करके अपने सर पे उठा के दूसरी जगह लेके जाओ, ये पॉसिबल नहीं है, और किसी को बोल भी नहीं सकते। ऐसे बोलने में हमें ही शर्म लगी। इसलिए ये ह्यूमन एस्पेक्ट जो कुछ भी है वो, ये भी एक पॉइंट कंसिडर करना पड़ेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट इज रिस्क ऑफ एपिडेमिक। ओके, अब रिस्क ऑफ एपिडेमिक में कैसे देखा जाएगा, ड्यू टू इम्प्रॉपर और केयरलेस डिस्पोजल ऑफ नट्स, देयर आर मोर चांसेस ऑफ आउटब्रेक ऑफ एपिडेमिक्स। बराबर है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है ये सब ओपनली चल रहा है। ओपन जो कुछ भी स्टोरेज है वो ओपन है, ट्रांसपोर्टेशन वो ओपन है, डिस्पोजल ओपन कर रहे हैं, यानी इस वजह से जो कुछ भी महामारी है, जो कुछ भी डिसीजेस स्प्रेड होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए ये भी एक डिसएडवांटेज का पॉइंट है। देन पोल्यूशन प्रॉब्लम। अब पोल्यूशन प्रॉब्लम किस तरह से, जैसे बताया मैंने कि सॉलिड वेस्ट, सॉरी, जो कुछ भी ह्यूमन एक्सक्रीट है, जो कुछ भी नाइट सॉइल है, वो नाइट सॉइल एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कलेक्ट की जाती है। अगर वो कलेक्ट किए गए एक आधे पर्टिकुलर पॉइंट पर वो वहां से लीकेज हो रहा है, या फिर जो कुछ भी कंटेनर लीक है एक आधे, या फिर एक आधे पर्टिकुलर जगह पे वो सॉलिड वेस्ट को प्लेस किया गया, या फिर जो कुछ भी एक्सक्रीट है वो क्या किया गया, प्लेस किया गया। तो अब
वेस्ट है, यानी वेस्ट में लिक्विड मैटर तो थोड़ा ज्यादा ही रहने वाला है। तो लिक्विड क्या होगा उस समय, लिक्विड को वो लिक्विड ग्राउंड में पर्कुलेट होगा। अब ग्राउंड में पर्कुलेट होते समय क्या होता है कि जो कुछ भी वेस्ट वाटर रहता है वो वेस्ट वाटर में के सिर्फ फिजिकल इम्प्यूरिटीज, या फिजिकल इम्प्यूरिटीज जो है वो फिजिकल इम्प्यूरिटीज ही रिमूव होती है। सस्पेंडेड सॉलिड फॉर एग्जांपल, डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज रिमूव नहीं होती, और डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज ज्यादा रहती है इसमें। जो कुछ भी वेस्ट वाटर पर्कुलेट होने के बाद जाता है उसमें डिसॉल्व इम्प्यूरिटी ज्यादा रहती है, इसलिए वो वेस्ट वाटर पर्कुलेट होते होते आखिरी में जो कुछ भी डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज है वो डिसॉल्व इम्प्यूरिटीज रिमूव नहीं होती, सिर्फ सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज रिमूव होती है। बाद में वो वाटर जाके मिलता है अंडरग्राउंड वाटर को, और अंडरग्राउंड वाटर में जाके मिक्स हुआ तो फिर अंडरग्राउंड वाटर को क्या करेंगे, वो पोल्यूट करेंगे, इसलिए ये भी एक क्या है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है। देन cost and cost consideration. Though this system is quite cheap in the beginning, but its maintenance and establishment cost is very high. जैसे कि अभी बताया मैंने आपको कि अपने को कुछ कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत ही नहीं, लेकिन हमें रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ेगा, रेगुलर जो कुछ भी है लेबर को अपने को जॉब पे भेजना पड़ेगा, जॉब लेबर का इनकम प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए बहुत ज्यादा खर्च आएगा। इसलिए ये जो कंजर्वेंसी सिस्टम है इनिशियल कॉस्ट कम है, लेकिन मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट जो है इसकी बहुत ज्यादा है। देन डिस्पोजल, देन नेक्स्ट इज डिस्पोजल लैंड रिक्वायरमेंट। इन डिस्पोजल लैंड रिक्वायरमेंट में कैसा बोलेंगे अपन, अब जैसे कि सॉलिड वेस्ट, अब सॉलिड वेस्ट या फिर लिक्विड वेस्ट या ह्यूमन एक्सीडेंट जो सभी कुछ कंसिडर, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सपोज अपने को डिस्पोज करना है, तो डिस्पोज करने के लिए अपने को लैंड चाहिए। लैंड अवेलेबल होगा तो ठीक, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो फिर उसका प्रॉब्लम आएगा, इसलिए लैंड रिक्वायरमेंट है। और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये भी कि अभी फिलहाल के समय में लैंड की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, इसीलिए लैंड और ये सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के लिए या लिक्विड वेस्ट डिस्पोजल के लिए या फिर ह्यूमन एक्सक्रीटा के डिस्पोजल के जो कुछ भी लैंड लगने वाली है वो लैंड बहुत ह्यूज क्वांटिटी में रहने वाली है। ओके, that's why it is not feasible to acquire that much of land for waste disposal, क्योंकि वेस्ट डिस्पोजल के लिए इतनी बड़ी लैंड अपन एक्वायर नहीं कर सकते, इसीलिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। ओके, यानी कि जो कंजर्वेंसी सिस्टम है, कंजर्वेंसी सिस्टम हैव लॉट्स ऑफ डिसएडवांटेजेस, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम इज नॉट कैरी फॉरवर्डेड इन फ्यूचर। इसीलिए हम अभी कंजर्वेंसी सिस्टम कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं। देखा जाएगा ये सिर्फ गांव में है, या फिर गांव में भी अभी नहीं, जो बैकवर्ड विलेजेस है वो बैकवर्ड विलेजेस में ही तुम्हें मिलेंगी, बाकी कहीं मिलने वाली नहीं है। अभी जो सिस्टम है अभी वो नेक्स्ट सिस्टम है अपनी वाटर कैरेज सिस्टम, जो अभी सभी जगह मोस्टली फॉलो की जा रही है। ओके, तो व्हाट इज वाटर कैरेज सिस्टम एंड व्हाई वाटर कैरेज सिस्टम, इसको नाम क्यों दिया गया है वाटर कैरेज सिस्टम। ओके, तो पहले थोड़ा सा पीछे जाऊंगा फिर से मैं। अपन ने कंजर्वेंसी सिस्टम में देखा कि जो कुछ भी सॉलिड वेस्ट या जो कुछ भी ह्यूमन एक्सक्रीटा, सलेज, सीवेज का जो कुछ भी डिस्पोजल हो रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तरफ, वो टोटली हो रहा है लेबर से, ह्यूमन बींग्स के थ्रू। ओके, और वो लेबर एस्पेक्ट डिसएडवांटेज में अपन लेबर एस्पेक्ट देखा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसीलिए वो ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड करने के लिए हमने क्या किया है, वो ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन मीडिया ही चेंज कर दिया। पहले ट्रांसपोर्टेशन मीडिया क्या था कि ह्यूमन बींग्स ही क्या करेंगे या लेबर ही क्या करेंगे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या करेंगे, वाटर वेस्ट क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब क्या किया है, जो कुछ भी कैरेज करना है, जो कुछ भी ट्रांसपोर्ट करना है, सलेज सीवेज, वो सब कुछ अपने को विद द हेल्प ऑफ क्या करना है, वाटर करना है। इसीलिए दिस सिस्टम इज दिस सिस्टम नेम्ड एज वाटर कैरेज सिस्टम। ओके, then in this system the collection, conveyance and disposal of waste are carried out with the help of water, जैसे कि अभी बताया मैंने। Thus water is used as media to convey waste from the source to treatment or disposal point। ओके, जो कुछ भी मीडिया लिया कन्वे करने के लिए अपने क्या लिया है, वाटर लिए हुए। देन sufficient quantity of water is required to be mixed with the waste, so the dilution ratio is large that the mixture may flow like water। okay, जो कुछ भी क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करनी है अपने को, वो क्वांटिटी ऑफ वाटर मिक्स करते समय आप इतना ज्यादा मिक्स करने की जो कुछ भी डायल्यूशन रेशियो क्या है वो अपने अगले वीडियो में अपन डिटेल में देखेंगे। सिर्फ इतना बता रहे कि जो कुछ भी वेस्ट है वेस्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करने है उसमें वाटर ज्यादा डालना है। ठीक है, तो डायल्यूशन रेशियो क्या करना है, अपने को इंक्रीज करना है।
is large that the mixture may flow like water. जो कुछ भी मिक्सचर होगा, जो कुछ भी सीवेज है, वो सीवेज ऑटोमेटिकली क्या हो, फ्लो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, क्योंकि अपने पता है लिक्विड हैज एबिलिटी टू फ्लो, सॉलिड डजंट हैव. ओके, that's why we have to increase the quantity of water in the sewage. Then how water carriage system works? Okay, then water closets are washed with 5 to 10 liters of water after use. ये अपने पता है कि जब जब अपन टॉयलेट बाथरूम यूज करते हैं उसके बाद अपन फ्लश करते हैं, फ्लश में क्वांटिटी ऑफ जो कुछ भी वाटर से वो ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कुछ भी वो फ्लश हो जाते हैं. देन वेस्ट फ्रॉम द किचन बाथरूम वॉश बेसिन आर लेड टू द सीवर्स. अब इसमें वाटर जो कुछ भी फ्लश की जो कुछ भी वाटर यूज नहीं है, लेकिन किचन में ऑलरेडी वाटर इतना ज्यादा यूज हो जाता है, जैसे वेजिटेबल फ्रूट्स धोने के लिए, बराबर है, तो वाटर ऑलरेडी यूज है. बाथरूम में भी ऑलरेडी जो कुछ भी मेजरली 99% क्या रहता है, वाटर लिक्विड ही रहता है, वाटर ही रहता है. इन वॉश बेसिन में भी सेम वाटर ही रहता है, इसीलिए इसमें अपने को अलग से वाटर फ्लश करने की या वाटर ऐड करने की जरूरत नहीं है. वो डायरेक्टली क्या करते अपन सीवेज में ले कर देते हैं. देन सीवर्स आर क्लोज्ड एंड अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्टेड ऑन फॉलिंग ग्रेडियंट. ओके, अब पहले जैसे अपन ने सिस्टम देखी थी कंजर्वेंसी सिस्टम, उसमें क्या हो रहा था कि जो कुछ भी अपना जो कुछ भी अपना सीवेज है, वो सीवेज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जो जा रहा था वो कंस्ट्रक्ट किया गया था ओपन ओपन गटर्स में. ठीक है, अब इधर जो कुछ भी है वो क्लोज गटर यूज किया, अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन किया गया, इसलिए जो कुछ भी ऑर्डर और फॉल स्मेल का जो प्रॉब्लम है वो नहीं होना है. और जो कुछ भी जैसे कि जो कुछ भी अपना फॉलिंग क्या बोलते हैं अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, जो यानी गटर्स वगैरह या क्लोज्ड पाइप या सीवर जो कुछ भी ले किए जाएंगे, जो कुछ भी प्लेस किए जाएंगे, वो फॉलिंग ग्रेडियंट पे यानी जहाँ पे जनरेशन, वो जनरेशन का पॉइंट क्या होगा, उनका हायर एलिवेशन का जहाँ डिस्पोजल है वो पॉइंट क्या होगा, लोअर डिस्पोजल है. यानी कि इससे क्या होगा, जो कुछ भी फ्लो है, सीवेज का फ्लो है, वो ग्रेविटी ज्यादा से ज्यादा ग्रेविटी के थ्रू होगा. एंड उसका जो कुछ भी फॉलिंग ग्रेडियंट है तुम्हें पता है स्लोप, जो कुछ भी फॉलिंग ग्रेडियंट है, फॉलिंग ग्रेडियंट इतना मेंटेन करना है अपने को कि सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी मेंटेन हो. यानी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी यानी इट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, इट इज द वेलोसिटी ऑफ द सीवेज, इट कैन क्लीन द सीवर बाय इटसेल्फ. ओके, जो कुछ भी सीवेज रहेगा सीवर्स में, सीवेज जो रहेगा वो सीवर वाटर की फ्लो की वेलोसिटी से ऑटोमेटिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ जाने क्लीन होता जाए, इसलिए वो वेलोसिटी क्या बन जाता है, self cleansing velocity. Okay, then the sewage is transported to the treatment plant and then it is disposed of into the water bodies. पहले के सिस्टम में ऐसा नहीं था. पहले के सिस्टम में कैसा था कि जो कुछ भी वाटर था वो डायरेक्टली डिस्पोज किया था. अब इधर क्या रहता है, प्रॉपर कैरेज सिस्टम है, कंजर्वेंसी प्रॉपर कैरेज सिस्टम है, जो कुछ भी वेस्ट वाटर है वो प्रॉपरली कलेक्ट किया जाता है. कहाँ पर, ट्रीटमेंट प्लांट में. सीवेज रहेगा तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, इंडस्ट्रियल रहेगा तो एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में. जो कुछ भी सीवेज है वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इट इज एब्रिविएटेड एज एसटीपी, एंड देन इट इज डिस्पोज ऑफ इनटू द वाटर बॉडी. अब सीवेज जो कुछ भी ट्रीट करने के बाद ये चेक किया जाता है कि जो उसकी क्वालिटी है वेस्ट वाटर की, जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर की जो क्वालिटी है, वो ट्रीटेड वेस्ट वाटर की क्वालिटी इतनी होनी चाहिए कि जैसे कि वो डिस्चार्ज के स्टैंडर्ड में हो. सीपीसीबी एमपीसीबी इन्होंने स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए हैं कि डिस्पोजल स्टैंडर्ड्स कि ट्रीट करने के बाद, सीवेज ट्रीट करने के बाद जो कुछ भी वाटर जो कुछ भी क्वालिटी रहेंगी, सीओडी, बीओडी, डिजॉल्व सॉलिड, सस्पेंडेड सॉलिड, ये जो कुछ भी पैरामीटर्स है, ये पैरामीटर्स विद इन डिजायरेबल लिमिट चाहिए, एक पर्टिकुलर लिमिट में चाहिए. वो लिमिट में रहेंगे तो ही अपन डिस्पोज कर सकते हैं, नहीं तो अपने को डिस्पोज नहीं करना पड़ेगा, नहीं कर सकते. देन वाटर कैरेज सिस्टम के एडवांटेजेस देखेंगे. और एक बात बताने की रह गई है, जो कुछ भी वाटर कैरेज सिस्टम रहती है उसमें जो कुछ भी सीवेज रहता है, क्या बोलते हैं, गार्बेज रहता है, गार्बेज इज कलेक्टेड सेपरेटली एंड कन्वर्ड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ डन इन द कंजर्वेंसी सिस्टम. ओके, अगर अपने उसको भी अगर सीवर्स में अगर ले कर दे तो उसके चांसेस क्या हो जाते हैं, उस वजह से क्या हो सकता था, जो कुछ भी सीवर वो ब्लॉकेज या चोक होने के चांसेस ज्यादा रहते थे, इसीलिए वो अपन अवॉइड करते हैं. देन वाटर कैरेज सिस्टम के एडवांटेजेस देखेंगे. हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट, जो उसके डिसएडवांटेज है मोस्टली वो इसके एडवांटेजेस ही है. तो हाइजीन एंड सैनिटरी एस्पेक्ट,
This system is very hygienic since the night soil and the other waste water is conveyed through close conduit. पूरा close conduit में से ये होता है, इसीलिए हाइजीन और सैनिटरी एस्पेक्ट मेंटेन किया गया है। और बैड स्मेल का भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला क्योंकि अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है इसीलिए, या फिर क्लोज कंटेनर है इसीलिए। देन इपिडेमिक एस्पेक्ट, देर आर वेरी फ्यू चांसेस ऑफ आउटब्रेक ऑफ इपिडेमिक, बहुत कम चांसेस है क्योंकि पूरा क्लोज में है, ओडर और न्यूसेंस का भी प्रॉब्लम नहीं है। देन नेक्स्ट इज पोल्यूशन एस्पेक्ट, जैसे कि देखा जाए तो द लिक्विड वेस्ट दैट द लिक्विड वेस्ट आर डायरेक्टली कन्वर्ट थ्रू द सीवर। लिक्विड वेस्ट को क्या किया जाता है, डायरेक्टली कन्वर्ट किया जाता है सीवर, और सीवर क्या रहती है, कंस्ट्रक्टेड, वेल कंस्ट्रक्टेड, इसलिए परपोल्यूशन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। इसलिए पोल्यूशन का जो ग्राउंड वाटर पोल्यूशन का जो कुछ भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम इधर नहीं है। देन कंपोजिट compactness in design, the latrines can be attached to the living and bedrooms, this permits a compact design। अब पहले की सिस्टम में अपन ऐसा नहीं कर सकते थे कि जो कुछ भी WC बाथरूम अपने रूम में अटैच कर दिया या फिर घर के नजदीक ही कर दिया, ऐसा उसको, क्योंकि वो वेस्ट कलेक्ट करने के लिए वो फिर कलेक्ट करना पड़ता था, इसलिए रिमूव करना पड़ेगा, फिर वो ऑर्डर और स्मेल का प्रॉब्लम आ सकता था, इसलिए अपन वैसा नहीं कर सकते थे। देन नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट। ओके, ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट में भी इधर कुछ नहीं इतना, क्योंकि जो कुछ भी वेस्ट वाटर सॉरी वेस्ट सीवेज वो पूरा की पूरा सीवेज ट्रांसपोर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाटर कैरी सिस्टम, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एस्पेक्ट नहीं है। देन लेबर एस्पेक्ट, लेबर भी जो, अब लेबर के हिसाब से देखा जाए तो अब इधर तो लेबर का जो कुछ काम था पहले कंजर्वेंसी सिस्टम में जो काम था वो इधर काम तो पूरा वाटर कर रहा है, इसलिए लेबर रिक्वायरमेंट भी कम है। और दूसरी बात, जो कुछ भी मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस भी कम लगने वाला है। मेंटेनेंस जो पहले एक सिस्टम में था वो उतना मेंटेनेंस अभी नहीं रहना, इधर सिर्फ ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द सीवर और द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए जो कुछ भी खर्च है वो आने वाला है, इसीलिए। और दूसरा जो कुछ भी लेबर कॉस्ट है, जैसे कि पहले अगर अपन ने सीवेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ट्रांसपोर्ट करना पड़ता था, अभी क्या करना पड़ेगा, अगर गलती से एक जगह एक आधे सीवर की जगह अगर ब्लॉकेज हो गया या बहुत सारा सीवेज एक जगह ही अक्यूमुलेट होगा, तो क्या कर सकते हैं अपन, पंपिंग के थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ये इस प्रोसेस में थोड़ा बहुत कॉस्ट इन्वॉल्व होगा। देन नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट एस्पेक्ट, अभी बताया ट्रीटमेंट, जो वेस्ट वाटर पूरा ट्रीट करके ही डिस्पोज किया जाता है। देन डिस्पोजल एंड लैंड रिक्वायरमेंट, अब इधर जो कुछ भी सीवेज है वो डायरेक्टली डिस्पोज नहीं कर रहे अपन, बराबर है, ट्रीट करके ही कर रहे, इसलिए लैंड रिक्वायरमेंट बहुत कम लगने वाली है अपने को। और सॉलिड वेस्ट लेंगे तो उसका मैन्योर बनाने के लिए जो कुछ भी लैंड लगेगी उतनी लगेगी, डायरेक्टली डिस्पोज करेंगे तो वो लैंड बहुत ज्यादा लगेगी, क्योंकि वो लैंड एक्वायर हो के बहुत ज्यादा लैंड बड़ी आती है, ये आपको पता ही है। और डिस्पोजल लैंड रिक्वायरमेंट में और बताना चाहूंगा कि वेस्ट वाटर को अपन डायरेक्टली ग्राउंड पे ट्रीट नहीं ये नहीं कर रहे, क्या बोलते, ग्राउंड पे डिस्पोज नहीं कर रहे, उसको ट्रीट करके वाटर बॉडीज में डिस्पोज कर रहे, इसलिए जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो भी नहीं होने वाला लैंड रिक्वायरमेंट का। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कॉस्ट कंसिडरेशन। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसकी इनिशियल कॉस्ट, दिस सिस्टम हैज द हाई इनिशियल कॉस्ट बट वेरी लेस, और वेरी लेस क्या बोल सकते हैं अपन, रनिंग कॉस्ट और मेंटेनिंग कॉस्ट, that's why this system is very effective। Okay, let's see the comparison, the conservancy system and the water carriage system। Conservancy system is highly unhygienic, okay, and the water carriage system is highly hygienic। ये अभी पूरा ही एक्सप्लेन किया मैंने आपको। then lots of false smell, क्योंकि open transportation है। no false smell because of the closed transportation, because of the closed conduit, because of the closed drainage system, underground drainage system। then compact house design is not possible because in conservancy system we have to construct WC bathroom some distance away from the living area or residential area। then compact house design is possible in this water carriage system। then large labor requirement is there in conservancy system for which is required for maintenance, transportation, disposal of the
waste. Then small labor requirement. Okay, then no technical person is required here. There is no technical person is required because the whole the transportation can be done by unskilled labor also. Okay, here the technical person is required for the operation and maintenance. Okay, for the operation and maintenance of STP, for the operation and maintenance of transportation. Okay, or for the operation and maintenance of pumping of sewage, here we require the skilled labor or technical person. Then high pollution problem, which may be water soil pollution, which may be underground water pollution. Then pollution problems are very less or very rare. Then large land requirement for the disposal, very less land requirement because the treatment is done and after that it is disposed into the water bodies. Then disposal into the streams create pollution. क्योंकि because in conservancy system the sewage is sewage जो कुछ भी वो सीवेज अपन ट्रीट ना करते उसको डायरेक्टली डिस्पोज करते बट इन वाटर कैरी सिस्टम the first the sewage is treated and then that sewage treated sewage is disposed of into the water bodies. Then good quality manure can be obtained. बराबर है जो कुछ भी solid waste है वो solid waste को अपन मैन्युअल के साथ कंसीडर कर सकते हैं या फिर सीवेज को अपन मैन्युअल में कन्वर्ट कर सकते हैं. देन ट्रीटेड सीवेज कैन बी रीयूज. इधर जो कुछ भी है here if we maintain the water quality for reuse the water, then we can use that treated water for garden purpose, toilet washing, flushing purpose, okay, and car washing purpose, that various uses of the treated wastewater. Okay, then suitable for rural area के लिए ही suitable है, not suitable for not suitable for urban area, but in water carriage system it is suitable for urban area, okay, as well as rural area.